يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے اور قربانی کے مسائل کے بارے میں بات یہاں تک پہنچی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اہل علم کی جو رائے تھی، اہل علم کی جو اقوال تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کے جائز ہونے کے قائل ہیں، ان کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے اور ساتھ میں ان دلائل کا تجزیہ بھی کیا، اس کا جو ہے مناقشہ یا کہیے آج کی زبان میں انالائسس، اس کا بھی جو ہے آپ کے سامنے ذکر ہوا. اور یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ کسی بھی صحیح روایت سے صرف میت کی طرف سے قربانی کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی بھی مرفوع صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں آئی ہے، اور بعض جو صحیح حدیثیں ہیں جن سے دلیل لی جاتی ہے میت کی طرف سے قربانی کے جائز ہونے کی، وہ دلیلیں بھی ہم نے پیش کی جس میں امت کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی پیش کرنے کی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، یہ بھی اس طرح سے اس سے دلیل لینا کہ امت میں اس میں جو لوگ وفات پا چکے تھے وہ بھی داخل ہیں، اور اس طرح سے دلیل لی جائے تو بہرحال یہ خواہ کیا جو ہے یعنی پہلے ذہن میں ایک چیز بیٹھا لیا جائے، پھر اس کے لحاظ سے کہیں سے کھینچ تان کر کے وہ بات کی جائے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے علاوہ تو ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امت کا یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ جن کی وفات ہو چکی تھی وہ بھی اس میں داخل ہیں، تو اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے اس میں وہ لوگ داخل ہیں جو پہلے وفات پا چکے ہیں، تو اس میں پھر وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جو آئندہ آنے والے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والی پوری امت اس میں داخل ہو جائے گی. تو جس طریقے سے یہ دلیل لی گئی کہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو پھر یہی حدیث دلیل اس کی بھی بن جائے گی کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے یہ بچے ہوں گے، لیکن ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، دنیا میں آئے نہیں ہیں، تو اپنی آنے والی اولاد کے تعلق سے بھی نسل در نسل آنے والے لوگ جو ہیں ان سب کی طرف سے بھی قربانی پیش کرے. یہ چیزیں لازم آتی ہیں. تو پہلی بات جو ہے وہ اس سے یہ لازم آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ اس میں جو ہے امت کے لفظ میں جن کی وفات ہو چکی ہے وہ بھی داخل ہیں، تو اس سے زیادہ یہ بات تو ثابت ہو سکتی ہے کہ زندہ لوگ اور اس کے ساتھ زندہ لوگوں کے ساتھ جو مرے ہوئے لوگ ہیں گھر کے افراد جو جن کی وفات ہو چکی ہے، وہ زندوں کے ساتھ اس قربانی میں شریک ہو جائیں گے. جب ہم یہ کہیں گے کہ میت کی یہ جو ہے ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، نیت قربانی میں یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے، تو اس گھر والے میں جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی داخل ہو گئے، جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی داخل ہو گئے. تو اس حد تک تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے اس سے.
लेकिन सिर्फ मैयत की तरफ से कुर्बानी के जवाज के लिए उसको दलील पेश करना बहरहाल ये सही नहीं है। इसी तरह से ये कहना कि ये सदका है और सदका मैयत की तरफ से करना जायज़ है, लिहाजा ये मैयत की तरफ से कुर्बानी भी जायज़, तो ये भी हमने आपको बताया था कि ये क़ियास गलत है। इसलिए गलत है कि कुर्बानी एक मुस्तकिल अलग इबादत है और सदका एक अलग इबादत है। कुर्बानी में माल खर्च ज़रूर होता है, लेकिन ये माली सिर्फ माली इबादत नहीं। तो कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है और सदका एक मुस्तकिल इबादत है। सदक़े का जायज़ होना मैयत की तरफ से ये इस बात की दलील नहीं हो सकता कि मैयत की तरफ से कुर्बानी भी जायज़ है। जैसे हम जो है ये आपसे जिक्र किया कि अगर मैयत की तरफ से ये कुर्बानी हो रही है और इसको सदक़े के हुक्म में आप ला रहे हैं, तो फिर उसका गोश्त खाना भी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर मैयत को सदक़े पर क़ियास करते हुए मैयत की तरफ से कुर्बानी को हम जायज़ इसलिए करार दे रहे हैं सदक़े पर क़ियास करते हुए, तो इससे ये लाजिम आएगा, जैसा कि सलफ में से जो लोग इसके कायल थे वो ये कहते थे कि अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी हुई है तो पूरा गोश्त सदका कर दिया जाए, गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, कुर्बानी करने वाला जो जिसने कुर्बानी ये पेश की है मैयत की तरफ से वो इसमें से ना खाए। तो ये चीज फिर लाजिम आती है। तो इसी से आपको समझ में आया कि कुर्बानी का गोश्त तो कुर्बानी करने वाला खा सकता है, फिर आप उसके ऊपर ये पाबंदी कैसे लगा रहे हैं कि कुर्बानी जिसने किया है वो कुर्बानी का गोश्त ना खाए और उसके घर वाले ना खाएं, पूरा के पूरा गोश्त गरीबों में तकसीम हो, वो अपने मालदार रिश्तेदारों को नहीं दे सकता, ये सब पाबंदियां कैसे लगा सकते हैं उस पर। तो ये बातें थी जो है मैयत की तरफ से कुर्बानी के तरफ से। एक और दलील जो पिछले हफ्ते आपके सामने नहीं पेश हुई थी, पेश कर रहा हूँ। एक और दलील जो पेश करते हैं वो है मसला हज का, कि हज के मौके पर जैसे हज ये मैयत की तरफ से हज करना जायज है, मैयत की तरफ से हज करना जायज है, कुछ कंडीशन है उसके, तो कंडीशन के साथ वो जायज है, ये अपनी जगह पर सही है। ये तो लोग इसके कायल हैं और ये सही बात भी है, हदीस से ये साबित भी होता है कि मैयत की तरफ से भी जो है हज किया जा सकता है। तो मैयत की तरफ से हज करना जायज है और हज जब करेंगे मैयत की तरफ से तो हज में कुर्बानी भी देना होता है। हज तमत्तु और हज इक़रार में तो जरूरी भी, तो ये कुर्बानी जो देना होता है हज में, इस तरीके से मैयत की तरफ से कुर्बानी जब उसकी तरफ से हम हज करेंगे तो कुर्बानी भी तो उसकी तरफ से पेश करनी पड़ेगी। जब हज के में पेश की जाने वाली कुर्बानी मैयत की तरफ से जायज है, तो फिर जो हम अपने घरों में रह करके गैर हाजी जो कुर्बानी पेश करते हैं तो वो भी मैयत की तरफ से जायज। तो हज के मामले में इसे क़ियास करना, हज मैयत की तरफ से जायज तो कुर्बानी भी मैयत की तरफ से जायज, ये सूरत हाल पेश की जाती है, दलील पेश की जाती है। यहाँ भी अगर आप इसको एनालाइज करने जाएंगे तो सेम वही मसला आएगा कि हज एक मुस्तकिल इबादत है, कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है, क्या कुर्बानी को हज के ऊपर प्रयास करेंगे? हज एक मुस्तकिल इबादत है, कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है, तो क्या हज के अंदर जो कुर्बानी पेश की जा रही है, जब मैयत की तरफ से हज कर रहे हैं तो मैयत की तरफ से ही, तो चूंकि कुर्बानी हज का एक हिस्सा है तो उस तरह से मैयत की तरफ से वो कुर्बानी हो जाती है, उस पर हम क़ियास करें और कहें कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना भी जायज़ है, मुस्तकिल कुर्बानी जो आदमी अपने घरों में रह करके करता है, जो हज के साथ खास नहीं है, अपने घरों की जो कुर्बानी है, जो बकरीद के मौके पर लोग अपने अपने शहरों में कुर्बानियां पेश करते हैं, अपने अपने इलाकों में कुर्बानियां पेश करते हैं हाजी के अलावा, तो क्या उस वक्त भी ये जायज़ हो जाएगा? ये सवाल आएगा। इसमें क़ियास के सिवा कुछ नहीं। याद रखिएगा कि जो चीज हराम होती है जायज नहीं होती है। कोई भी इबादत का कोई पहलू जब जो है जायज नहीं होता है, तो उसके जवाज के लिए दलील की जरूरत पड़ती है, तो उस पर क़ियास भी सही नहीं होता। यानी दूसरी इबादत पर क़ियास करते हुए आप उसे जायज नहीं करार दे सकते, क्योंकि ये इबादत तौक़ीफ़ी होती है और इबादत तौक़ीफ़ी का मतलब ये होता है
जो अरबी में तौक़ीफ़ी कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से इस तरीके से फ़र्ज़ की गई हैं, इसमें हमारे अपने इज्तिहाद और हमारी अपनी अक़ल का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इज्तिहाद इसमें नहीं चलेगा, क़ियास इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये इबादत हैं और इबादत रब्बुल आलमीन की तरफ से जिस तरीके से जिस इबादत के बारे में जितना हुक्म आया है उसी के लिहाज से उस इबादत पर अमल भी होना चाहिए। तो अब चूंकि हज के बारे में हदीस में है, सही हदीस में है, तो उसको मानते हैं कि भाई मय्यत की तरफ से आप हज कर सकते हैं, कंडीशन जो है उस कंडीशन का पालन करते हुए, उस कंडीशन का ख्याल करते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन मय्यत की तरफ से अलग से कुर्बानी पेश करने के बारे में चूंकि कोई बयान नहीं आया है, और ये चीज ऐसी है कि इसको अरबी में कहा जाता है उमूम बलवा, मिम्मा ताउम्मु बहिल बलवा, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है कि कभी जिंदगी में पेश आ गई, नहीं आई, ऐसी कुछ नहीं, ये तो हर साल का मसला है। ये कुर्बानी हर साल ईद उल अजहा के मौके पर पेश की जाने वाली इबादत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदनी जिंदगी में, मदीने में जब तक आप रहे और मदीने की पूरी जिंदगी आप हमेशा कुर्बानी करते रहे, सहाबा कराम कुर्बानी करते रहे, लेकिन क्या कभी ऐसा रहा उनका कि एक आम चीज थी, एक जनरल जो है चीज है जो कि उस जमाने में हर एक को पेश आने वाली है। अगर यहाँ जायज होने का मसला होता तो इस पर जो है कसरत से अमल होता, और अमल चला, ये अमली चीज है ना, यानी एक ऐसी चीज है जो अमल में आ रही है, जो बाकायदा सिलसिला चलता, वही अमल चला आ रहा है, चला आ रहा है और लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो सिलसिला चलता रहता है ये। और इसमें फिर इख्तिलाफ के ये मसाइल भी नहीं आते थे। आप देखिए, नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जैसा आप लोगों को देख रहे हैं नमाज पढ़ते हुए, वैसे ही आप नमाज पढ़ते हुए चले जाते हैं। यही हाल 99% लोगों का होता है। 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किताब में पढ़ करके कि ऐसे नमाज पढ़ना है, नहीं नमाज सीखी होगी, वो तो जैसे दूसरों को पढ़ते हुए देखा है उसी तरीके से पढ़ते, उसी तरीके से नमाज अदा करते हैं। और यही तरीका जो अमली चीजें होती हैं, जैसा अमल चला आ रहा होता है उसी लिहाज से वो अमल कंटिन्यू होता रहता है, मुसलसल जो है तवातुर के साथ वो अमल चलता रहता है। कुर्बानी भी एक अमली ऐसी इबादत है जो सबके सामने की जाने वाली इबादत होती है, कहीं छुप छुपा करके की जाने वाली चीज भी नहीं है ये। और अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि सहाबाए कराम कहाँ पीछे रहते इसमें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते नहीं, बेटा अपने बाप की तरफ से कर सकता है, औलाद अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर सकती है। अगर औलाद जो है अपने मरे हुए वफात शुदा वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकती है, दूसरे नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा मसला है, ये भी एक ओपिनियन है, ये भी एक राय है। यानी ये औलाद कर सकती है, ये कहां से, इसकी भी तो कोई दलील होनी चाहिए। जब दलील पूछी गई तो मालूम हुआ कि भाई दलील क्या पेश कर रहे हैं कि औलाद भी तुम्हारी अपनी कमाई है, या औलाद क्या है, ये चूंकि वालिदैन की कमाई है इसीलिए ये औलाद है ये कुर्बानी कर सकती है अपने वालिदैन की तरफ से, अपने जो है इंतकाल पा चुके वालिदैन की तरफ से ये कुर्बानी कर सकती है। करता कौन है दुनिया में कुर्बानी मय्यत की तरफ से? औलाद ही तो करती है। बहुत शाज़ो नादिर यानी रेयर केस होगा कि कोई और किसी और की तरफ से कर दे कुर्बानी, वरना तो ज्यादा यही होता है। आप देखेंगे कि जो आम जो है तरीका है लोगों में, राइज तरीका जो, वो क्या है कि जनरली लोग, जैसे अहनाफ के यहाँ ये होता है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो 2 बकरे लेंगे तो एक जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करेंगे और एक अपनी तरफ से करेंगे। अगर 2 है तो उनका तरीका ये होता है। या फिर क्या होता है, औलाद जो है अपने
جو جائز ہے اس کے میت کی طرف سے قربانی کے تو کیا کرتے ہیں اپنے نام سے قربانی کیا اور ساتھ میں والد صاحب کے نام کی بھی قربانی، والدہ کے نام کی قربانی، زیادہ تر تو لوگ یہی کرتے ہیں نا، قربانی کا یہی طریقہ ہوتا ہے ان کا، اولاد اپنی جو ہے والدین کی طرف سے، فوت شدہ والدین کی طرف سے ہی، انتقال پا چکے والدین کی طرف سے ہی اولاد قربانی کرتی ہے، زیادہ یہی ہوتا ہے۔ کہتے نہیں یہ جائز ہے، بھائی یہ جائز ہے تو کس نے کیا تھا؟ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی طرف سے کیا تھا، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چلو کہہ سکتے ہیں کہ والد کا مسئلہ ان کا الگ ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد تو وفات پا چکے تھے اور مسلمان بھی تھے، اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خاص بات یہ ہے کہ ان کے باپ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے اور ان کے بیٹے بھی صحابی تھے، تو اس طرح سے یہ تین نسلیں صحابی ہونے کا شرف، مسلمان ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحابی ہونے کی بات، تو ان سب کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو اسلام قبول کیے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، لیکن کہیں بھی نہیں آتا کہ انہوں نے کبھی اپنے والد کی طرف سے قربانی کی ہو، اپنی زندگی میں اپنی طرف سے بھی کرتے تھے، اپنے والد کی طرف سے بھی کرتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ والدین کو ثواب پہنچانے کا کام جو اولاد کر سکتی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد اس میں پیچھے کیسے رہتی؟ اور اگر یہ چیز تھی تو چونکہ یہ عموم بلوا ہے، مما تعم بہل بلوا جسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ کثرت سے یہ چیز ہوتی ہے۔ والد جو ہے کتنے صحابہ تھے جن کی جو ہے باپ اور وفات پا چکے تھے، ان کی ماں وفات پا چکی تھی، وہ سب مسلمان تھے اور وفات پا چکے تھے، ایک دو نہیں، کافی صحابہ ایسے تھے۔ اگر یہ سب لوگ کرتے رہتے یہ قربانی نا تو اس کا بہت زور شور سے چرچا بھی ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں روایتیں اتنی خاموش نہیں ہوتی تھیں کہ کسی ایک روایت میں بھی کہیں ذکر نہیں ملتا ہے کہ ان صحابہ نے اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کیا ہو، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سوچنے کی، تو یہ اس کو بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے، صرف اس بنیاد پر کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، تو کیا اولاد تمہاری کمائی ہے تو اب جو ہے اولاد اپنے والدین کی طرف سے نماز بھی پڑھے گی، اپنے وفات پائے ہوئے والدین کی طرف سے نمازیں بھی پڑھے گی، ان کی طرف سے روزے بھی رکھے گی، فرض روزے کے علاوہ جو چھوٹ گیا تھا اور قضا نہیں کر پائے اس کے علاوہ، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر بات آئی ہوئی ہے، لیکن عام نفل جو ہے کیا وہ روزے بھی رکھے گی؟ اس کی بھی گنجائش نکالیں گے، کیونکہ یہ کمائی ہے، جب کمائی ہے تو ٹھیک ہے، گویا کہ باپ ہی عمل کر رہا ہے، گویا کہ ماں ہی عمل کر رہی ہے، اس لحاظ سے اگر جائز قرار دیا جائے تو قربانی ہی صرف کیوں، دوسری عبادات کیوں نہیں؟ سوال یہی آئے گا، تو سوال پھر بھی بنتا ہے، اگر سوال بنتا ہے تو جواب طلب بھی کیا جائے گا۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، جو دلائل عام طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں ان دلائل کے تجزیے کے تعلق سے، یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ جو لوگ خاص طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرتے ہیں، انہیں سوچنا بھی چاہیے کہ زیادہ ثواب کی ضرورت تو ہم کو ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے اونچا مقام ملنے والا ہے، ہم ان کے لیے اونچے مقام کی دعا تو ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہماری جو بھی دعا ہوتی ہے، جب ہم اذان سنتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں، اذان کے بعد جو جواب دینے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں تو ہم کیا یہ دعا نہیں کرتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّدًا الوسیلۃ والفضیلہ۔ الوسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک مقام ہے، ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ تو شاید اتنا خیال نہیں رہتا، لیکن یہ قربانی جو ہے بہت، جس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہے،
उस पर लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी आपका बड़ा एहसान है। आपका जो एहसान है इस उम्मत पर वो कौन भुला सकता है, और कौन इस जो है इसकी नाशुक्री कर सकता है। वो तो बखील वो है, नाशुक्रा वो है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी जिक्र किया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे, सलात ना पढ़े भेजे, वो जो है बड़ा बखील है। जो आपके लिए दुआएं ना करे, अजान सुन करके अजान का जवाब न दे और अजान का जवाब दे करके दुआ ना पढ़े, ये वो बड़ा बदबख्त होगा। लेकिन और जो कसरत से दरूद भेजते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके लिए ये चीज बहुत है। याद रखिए क़यामत के दिन आपके यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो लोग होंगे जो कसरत से आप पर दरूद जो है पढ़ते रहते हैं। मेरी दरूद से मुराद वो नहीं है जो आजकल जो है अजान से पहले या इस तरह से कुछ जो बिदआत और खुराफात की शक्ल इख्तियार करके जो चीजें जो है मुआशरे में राज की गई, वो मेरा मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आपकी तौजीहात है, जो आपकी तालीमात है, जो आपने उम्मत को दे रखी है, उसमें ये हिदायत भी है कि आप पर कसरत से दरूद भेजा जाए। और जो जितनी ज्यादा कसरत से दरूद भेजता है वो उतना ही ज्यादा इस बात का हक होगा उसे कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का जो है सिफारिश उसको जो है पहुंचे और आपकी सिफारिश का उसे जो है हक होगा। ये चीज है। इसकी हदीस की शरह में क्या लिखा है लोगों ने कि इसमें तो सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन उनको हक पहुंचता है। ये क्यों? क्योंकि कसरत से जब हदीस पढ़ते पढ़ाते हैं ना, तो कसरत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, और जब भी जिक्र आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहते हैं। अभी आप यहाँ इस दर्स में हैं, अब बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों में मशगूल हो गए, लेकिन आप इस दर्स में हैं। इस दर्स में आपकी मौजूदगी और इस दौरान जो बार बार जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया और मैं बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आपकी जबान से भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अदा हो रहा होगा। ये है वो कसरत से दरूद भेजना। तो जो भी इस्लामी तालीमात से करीब है, जो भी इस्लामी दुरूस में शिरकत करते हैं, जहाँ कसरत से खास तरीके से हदीस की बात होती है, जहाँ कसरत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है और आप पर कसरत दरूद भेजने का बड़ा मौका होता है, तो ऐसे लोग क़यामत के दिन ज्यादा हक रखेंगे इस बात का कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उनको हासिल हो। ये सोच लेना कि हम उनकी तरफ से कुर्बानी कर देंगे तो हमको ज्यादा इसका हक हासिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बिदआत का सहारा लेकर के बिदआत की बैसाखी पर कभी भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के हक तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बल्कि हदीसों के लिहाज से तो ये मालूम होता है कि जो बिदअत और खुराफात का जिन्होंने सहारा लिया उनको तो हटा दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाना चाहेंगे, उनको भी करीब करना चाहेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं, लेकिन कहा जाएगा कि सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी। ये कहा जाएगा कि आपको पता नहीं है कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या दीन में नई चीजें इजाद कर ली थी, और तो फिर आप जब सुनेंगे तो कहेंगे कि इनके लिए जब ऐसी बात है तो इन्हें दूर किया जाए। जो जायज और सही जो सोर्सेस हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने के
और आपकी सिफारिश का जो है, आप हमारे बारे में भी सिफारिश करें, उसके लिए जो सही तरीका है वही तरीका अपनाएंगे, तब हम जा करके उसके करीब हो पाएंगे। तो ये बातें थी मेरे भाइयों की मय्यत की तरफ से कुर्बानी की जवाज के ताल्लुक से और अदम जवाज के ताल्लुक से। हमने आपसे ये भी कहा था कि जो लोग इस बात के कायल है कि जायज नहीं है, उनको किसी दलील को पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मय्यत हैं, और मय्यत का कोई भी अमल जैसे ही उनकी आंख बंद हो जाती है, उनकी वहां से उनकी मेहनत, उनका अमल, उनकी तरफ से तगोदो, उनकी तरफ से मेहनत, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इधर सांस की डोरी से सिलसिला खत्म हुआ, सिलसिला जो है अब नहीं बाकी रहा सांस का, और उधर अमल का सिलसिला भी बंद हो जाता है। सदक़े जारिया है जिसकी वजह से वो चलता रहता है, लेकिन वो सदक़े जारिया अलग उसकी शक्ल होती है। ये जो है कुर्बानी के ताल्लुक से वो सदक़े जारिया वाली बात जो है नहीं आती। तो सदक़े जारिया का मसला अलग होता है कि आदमी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नेक काम करके गया है जिसका सवाब उसे मरने के बाद मिलता रहता है, जो नेक काम वक्फ वगैरह का करके गया है, कोई ऐसा काम करके गया है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो जब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे उसकी नेकी का ये अकाउंट भी चलता रहता है, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन उसकी तरफ से फिर कोई अमल करके हम चाहें कि उसकी नेकियों के अकाउंट को हम जारी रखेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं रखी है शरीयत में। अल्लाह ताला ने कि जब इंसान जिंदा है तो उसको जिंदगी में ऐसा कुछ करके जाना है, जो अमल करना है खुद करे, और या तो कुछ ऐसा अमल करके जाए जो मरने के बाद भी उस चश्मे से जो है पानी जारी रहे, नेकियों का ये चश्मा मरने के बाद भी उबलता रहे, लोगों को फायदा होता रहे और उसको नेकियां मिलती रहे। तो नेकियों का एक ऐसा अकाउंट भी है मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक ऐसी सहूलत भी दे रखी है कि हमारे पास जो अकाउंट नेकियों के हैं, उनमें से एक अकाउंट ऐसा है, जैसे हमारे पास जो बैंकों के अकाउंट होते हैं तो कभी सेविंग होता है, कभी क्या होता है करंट अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, तो मुख्तलिफ जो अकाउंट होते हैं ना, नेकियों का भी अकाउंट एक खास तरह का अकाउंट रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने। वो कौन सा अकाउंट है? सदक़े जारिया का अकाउंट है कि आप अगर इस अकाउंट को अपने जिंदगी में आपने इस अकाउंट को अगर खोला है, तो याद रखिए कि ये ऐसा अकाउंट है कि मरने के बाद बंद नहीं होता है। जब तक उसमें वो सिलसिला चलता रहता है, उससे लोग फायदा उठाते रहते हैं, तब तक सवाब का ये सिलसिला भी चलता रहता है। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये जिक्र किया बाद लोगों ने कि अभी भी मदीने की बाज जगहों से उनका नेकी का अकाउंट चल रहा है। अपनी जिंदगी में जो उन्होंने किया था, वक्फ जो किया था, तो आज तक लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। बाज जो है ऐसी चीजें बताई गई हैं कि आज भी गरीब और मिस्किन उससे फायदा उठा रहे हैं, और इस तरह से उनकी नेकियों का ये अकाउंट अभी भी चल रहा है। तो ये बात थी, कुर्बानी उसमें शामिल नहीं है, सदक़े जारिया के इसमें कुर्बानी जो है नहीं आती। तो कुर्बानी का अमल कैसा है कि आपको मय्यत की तरफ से करना पड़ रहा है, और चूंकि मय्यत की तरफ से आप क्या कर सकते हैं या उसको आप क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए बाकायदा दलील की जरूरत पड़ती है। जब तक दलील से कोई बात साबित न हो जाए कि आप मय्यत की तरफ से ये काम कर सकते हैं, नेकी का ये काम कर सकते हैं, तब तक नेकी का कोई भी काम मय्यत की तरफ से करने की इजाजत नहीं। और कुर्बानी के बारे में कोई सही हदीस, कोई सही दलील ऐसी नहीं है जिससे कुर्बानी के जायज होने का पता चलता हो, जो सराहत के साथ
बहुत ही क्लियर कट अंदाज में मैयत की तरफ से कुर्बानी के जवाज का जिससे पता चलता हो, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। इसीलिए हम इसी को सही समझते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना सही है। जब मुझसे कोई पूछता है इस मसले में कि हम मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं भाई आपने अब तक अपनी तरफ से कितनी कुर्बानियां कर, आपके अकाउंट में कितना जमा हो चुका है कि अब आपको खुद जरूरत नहीं है, अब आप दूसरे को देना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, आपका अपना अकाउंट, उसका हाल क्या है, आपके अकाउंट में कितना जमा हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट की कुर्बानी दी थी। 100 ऊंट की कुर्बानी, एक साल की बात है। 100 ऊंट की कुर्बानी, जब आप हज करने गए थे, 100 ऊंट की, बकरे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊंट की बात कर रहे हैं। एक ऊंट में 10 आदमी शरीक हो सकता है। उस ऊंट की बात कर रहा हूं कि 100 ऊंट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी तरफ से कुर्बानी दी थी। जबकि आप, ऐसा नहीं था कि दुनिया के सबसे मालदार आदमी थे। आज हम कितनी कुर्बानी, अरे अपने नाम से कर लो, आपको जरूरत है। अपने घर वालों के नाम से कर लो जो जिंदा है। इतने जानवर नहीं होते आपके पास कुर्बानी के लिए, या आपने अगर अपने नाम से एक कुर्बानी कर लिया तो बस खत्म, अब मुझे ही नहीं, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, ऐसा कहाँ है। आपके पास 1000 हैं जानवर, अपने नाम से कर दो। 1000 जानवर की कुर्बानी का अज्र आपके अकाउंट में आएगा। आप ये मत सोचो कि मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, जिंदगी में जरूरत नहीं सोच करके मरने के बाद फिर क्या होगा, बाद में जो आएगा कि जो है आपके नाम से कुर्बानी करता है। फिर अब जो लोग वफात पा चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने नाम से कुर्बानियां की हों और ज्यादा कुर्बानियां की हों, उनको उसका अज्र और सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अब आपको उसकी क्या जरूरत है। फिलहाल आप अपने अकाउंट को जो है भर लीजिए, आप अपने अकाउंट का ख्याल कर लीजिए। हर आदमी का अपना अकाउंट उसके लिए अहम है। नेकियों में नेकियां दूसरों को दी नहीं जाती हैं। हाँ, दूसरों के लिए नेकी का सामान कर सकते हैं, लेकिन नेकियां दी नहीं जाती। इसीलिए तो हम ईसाले सवाब के कायल नहीं हैं। अब ईसाले सवाब का एक लफ्ज है, चूंकि यहाँ वो भी मसला आता है, मैयत की तरफ से ईसाले सवाब की बात करते हैं। मैयत की तरफ से कुरान खुद पढ़ करके मैयत को बख्श सकते हैं, यानी इसका अज्र सवाब है अल्लाह तो मरने वाले को दे दे। ये ईसाले सवाब, ये हनाबिला के यहाँ भी है, अहनाफ के यहाँ भी। किसके लिए? कुरान हमने पढ़ा, सवाब किसको जाएगा? मरने वाले। हम खुद अल्लाह ताला से क्या करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं, इसको कहते हैं ईसाले सवाब। यानी जो हमारा सवाब था वो कहाँ पहुंचा दिया जाए? मरने वाले को पहुंचा दिया जाए। यानी हमें जरूरत नहीं है, मरने वाले को जरूरत है। यही होगा कि फिर हम मरेंगे तो क्या होगा? दूसरे लोग पहुंचाएं, अगर नहीं पहुंचाए तो फिर क्या होगा? एक आदमी नेकी का कोई काम करता है, मेरा सवाल ये होता है कि नेकी का कोई काम करता है, उसको कितना सवाब मिल गया उसका कि उसको दूसरे को पहुंचाना, जिसका हमें खुद यकीन नहीं है कि हमें सवाब मिल ही गया। अल्लाह ताला के यहाँ उस अमल का मकबूल होना बहुत जरूरी होता है सवाब के लिए। अच्छी नीयत से किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमें उम्मीद होती है, सब कुछ है, लेकिन कौन कह सकता है 100% यकीन है उसको। खुद अपने लिए तो सवाब पहुंचने का अभी तो 100% होता नहीं है। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, गोया कि ये सवाब हमको मिल ही गया है, हम इसको हदिया गिफ्ट कर रहे हैं दूसरे को। और मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को खुद संवार दो। अपनी जिंदगी में ही अपने अकाउंट को खुद भरने की कोशिश करो कि क़यामत के दिन अगर नेकियों का पड़ा हल्का हो गया तो फिर उस वक्त कुछ भी काम नहीं आएगा। वहां आपके कोई भी काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। भाई भाई से भागेगा, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से। कुरान में जिसका नक्शा खींचा गया है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। आप क्यों खामखा में जो है इसके बारे में सोच रहे हैं? हर आदमी क्यों नहीं अपने अकाउंट के बारे में सोच रहा है? हर आदमी को अपने अकाउंट के बारे में सोचना है।
ये मत कहिएगा कि अब गोया कि मैं आपको सेल्फिश बना रहा हूँ और सेल्फिशनेस की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई कि जो है हम सिर्फ अपने अकाउंट की परवाह करें, दूसरे के अकाउंट की फिक्र ही ना करें। ये कैसा जो है आप कह रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये बात हो। याद रखिएगा, दुनिया का माल जितना चाहे आप दे दीजिए किसी को, आपका माल, आपकी जो मिल्कियत है, आपकी ओनरशिप है, आप दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन नेकी नहीं। नेकी किसके लिए? अपने लिए। इसीलिए ये बात कही गई है इसके बारे में कि अब मस्जिद को गए, मैं आपको मिसाल से समझाता हूं इसको। मस्जिद गए हुए नमाज के लिए, आगे सफ में जगह खाली है, पहली सफ में पहले खड़े थे, दूसरा कोई आ गया, खुद पीछे हट के आप आ जाइए, जायज नहीं है ये शरीयत। आप पहले पहुंचे तो पहले पहुंचने का जो अज्र है वो आपको मिलता है। आप ऐसा नहीं कि आप जो है पहले वहां पहुंच गए थे और फिर आप दूसरे के लिए जगह खाली कर रहे हैं। वो दुनिया के जो मामलात होते हैं, लोग यहाँ ला करके उसको सोचने लगते हैं। नेकी के मामले में किसी के लिए जगह नहीं खाली करना है, याद रखिएगा। चाहे जो भी हो, वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो या वक्त का सबसे बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, अगर वाकई माने में वो आलिम होगा तो कभी जाएगा भी नहीं आपकी जगह पर, क्योंकि ये जायज नहीं है ना। इसलिए वो खुद ही बोल देगा आपको कि नहीं, आप पहले आए हो तो आप अपनी जगह पे रहो। जो जब जहां पहुंचता है उसको वहीं सफ में बैठना है। जुमे के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन फलांग करके आगे जाकर के बैठने से मना फरमाया। जो जहां आया, जहां जगह है, जहां सब खत्म होती है वहीं पर बैठेगा, आगे नहीं जाएगा। यहां जो पहले आया है उसका अज्र उसे मिलना है, अपना अज्र दूसरे को नहीं देना है कि जो है नहीं मैं पहले आ गया था, चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे आखिर में जाता हूँ, आप मेरी जगह पर चले आओ। तो दूसरे लोग तो एतराज नहीं करेंगे कि मैं आपको अपनी जगह दे रहा हूँ। आपको देने का हक नहीं है। गोया कि आपको नेकियों की जरूरत नहीं। ये तसव्वुर जहन में रखना, इस तरह का ख्याल भी आ जाना कि मुझे नेकियों की जरूरत नहीं है, बहुत गलत चीज है। गलत चीज है, गलत तसव्वुर है ये। हमेशा नेकियों के मामले में कहा गया, सारे इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। आप तो नेकियों और मग़फ़िरत के लिए कंपटीशन करके आगे बढ़ो, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी ना हटना है इसमें। नहीं, ये तो आगे बढ़ने के लिए कहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोशिश यही होती थी सहाबे किराम की कि जब नेकियों का कोई भी मैदान आता, आगे बढ़ने की बात होती, तो बड़ी ख्वाहिश के साथ वो दूसरों से कंपटीशन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। एक मरतबा कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कि अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि पहली सफ में पहुंचने का क्या अजर सवाब है, अजान देने का क्या है, उसकी क्या अहमियत है, तो उसके बाद क्या होता कि लोगों के दरमियान कुरान अंदाजी करना पड़ता। जैसे आजकल टास्क उछालते हैं ना, तो कुरान अंदाजी ऐसे, ये शरीयत की बात है कि कुरान अंदाजी करना पड़ता कि आज कौन आगे आएगा, आज कौन पहली सफ में बैठेगा। ये सूरत हाल है। आदमी नहीं, चलो ठीक है, ये बहुत ऊंचे दर्जे के साहबे, इनका बड़ा मुकाम है, इनको छोड़ देते हैं आगे, ये शरीयत में नहीं है। तो कभी भी याद कर लीजिए, याद रखिएगा ये कि आप अपनी नेकी के बारे में कोशिश करेंगे, अपनी नेकियां जो है, अपनी नेकियों के काउंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये आपसे मतलब है शरीयत में। हरगिज हरगिज आप अपनी नेकी की चीज को दूसरों को और दूसरों के हवाले नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, चाहे वो जो भी हो। तो आपको नेकी का जो अजर सवाब खुद हासिल करना है, आप दूसरे के इसमें भेज रहे हो, गोया कि आपको जरूरत नहीं है। गलत चीज है ये कि आपको जरूरत है ना, सबसे पहले आप क्यों दूसरे को भेजोगे?
फिर वही होगा कि आप जो है दूसरे को भेज रहे हो, फिर अब कोई और आपके लिए भेजे, आपका कोई ना भेजे तो क्या करोगे? बाद में आने वाले लोग उस तरह के नेक नहीं रहे तो क्या करोगे? फिर परेशानी में रहोगे। अपने बारे में सोचो, नेकियों का मामला क्या है, अपने बारे में सोचो। हमेशा सोच अपने बारे में, नेकियों के बारे में। दुनिया का मामला ये है कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, तो अल्लाह ताला और भी देगा, वो अल्लाह ताला का वादा है। लेकिन नेकियों के बारे में अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि तुमको जो हमने नेकी करने का मौका दिया तो दूसरे को दे दो फिर हम तुमको देंगे, वैसा नहीं है। नेकियों का मौका आए तो आगे बढ़ करके सबसे पहले खुद जो है उस नेकी को हासिल करने की कोशिश करो, दूसरों के हवाले मत कर दो। कि रास्ते में चलते हुए हमें कोई गरीब मिस्किन ऐसा मिल गया जो दाने दाने को तरस रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब दूसरे का इंतजार कि चलो पीछे कोई आएगा तो वो कर लेगा, मुझे क्या पड़ी है देखने की इसको, मैं अपना रास्ता लूं, तो ये गलत है। कोई मजबूर है रास्ते में, मदद का मोहताज है, उसे छोड़ करके इस इरादे से कि दूसरा जो पीछे आ रहा है वो देख लेगा, ये सही नहीं। ये आपके लिए नेकी का एक ऐसा मौका है कि खुद आगे बढ़ करके, दूसरे से पहले खुद आगे बढ़ करके उसकी जरूरतों का ख्याल कर लीजिए। ये है असल। तो कभी भी ये जो मय्यत की तरफ से कुर्बानी में, हो सकता है कि आपके जहन में जब हम कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, खुद जो है आप खुद अपने नाम से कीजिए, तो आपके जहन में ये आया कि फिर मैं नेकी करने से ऐसे क्यों रोक रहा हूँ, अपने घर वालों को नेकियां पहुंचाने से क्यों रोक रहा हूँ। तो ये बात जहन में रखिएगा कि नेकियों के ताल्लुक से जो ज़ाब्ता है वह यही है, हमें नेकियां खुद पहले करनी है, खुद अपने अकाउंट को उसमें भरना है। और जहां तक दुआएं करने की बात है, तो दुआ तो एक ऐसा जो है खुला हुआ दरवाजा है मेरे भाई, इस सब के लिए दुआएं, कुछ भी कमी नहीं। दुआ आप मय्यत के लिए कर रहे हो, फरिश्ते आपके लिए जो है आमीन कहेंगे, और आपको भी उसका फायदा होता है, मय्यत को भी होता है, दोनों को होता है वहां पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मय्यत को हो रहा है और आप अपना सवाब मय्यत को दे रहे हैं, दुआ में ऐसा नहीं होता है। दुआ तो आप मय्यत के लिए करते हैं, जो भी गुजर चुके हैं सबके लिए करते हैं। आप जब भी दुआएं करते हैं दूसरों के लिए, यहाँ तक कि जो जिंदा हैं आपके सामने नहीं है, उनके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, तो फरिश्ते आमीन कहते हैं कि अल्लाह तो इसको भी उसके जैसा दे दे, जितना ये दूसरों के लिए दुआ कर रहा ना, तो भी इसको भी अल्लाह तो इसको भी दे दे। तो आदमी को खुद ब खुद मिलता है दुआएं करते हुए, और दूसरों के लिए दुआ करना ये खुद अपने आप में एक इबादत है। अल्लाह ताला इस इबादत पर हमें अजर सवाब से नवाजता है वहां पे। तो ये एक बात थी। इसीलिए मैं कभी कोई जब हमारे भाई सवाल करते हैं बकरीद के मौके पर कि जो वालिदैन की बात है कि भाई हम अपने वालिदैन के नाम से करना चाहते हैं, जो एक फतवा है, हमारे बहुत सारे भाई लोग नकल कर देते हैं फतवे। अब कापी पेस्ट का ऐसा तरीका चल गया है, किसी का फतवा पढ़ा किसी बड़े आलिम का, तो अब कापी पेस्ट कर देते। इससे कतई नजर कि कहाँ तक ये फतवा सही है, वो कौल भी सही नहीं है। जो वालिदैन की तरफ से औलाद कुर्बानी कर सकती है अपने मरे हुए वालिदैन की तरफ से, वो कौल भी सही नहीं है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और ये याद रखना है, मैं अक्सर कोई मुझसे पूछे, मैं कहता हूँ अपने नाम से करो ना भाई, अपने नाम से करोगे तो आपको जो अजर सवाब मिलेगा और साथ में आपके वालिदैन को भी अजर सवाब। आपको अपना सवाब देने की किसी को जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला खुद उसे देगा अगर उसने जिंदगी में सही तरीके से औलाद की तरबियत की है, और औलाद मरने के बाद जो भी नेक काम करती है, अगर सही तरबियत वालिदैन की तरफ से रही है, तो औलाद के नेक अमल का सवाब हाँ वालिदैन को भी मिलता है। ये तो वो अमल है, अकाउंट का वो सोर्स था ये, जो चलता रहता है। ये अकाउंट बंद नहीं होता है। जिंदगी में आदमी कुछ ऐसे काम भी करके जाता है कि वहां अकाउंट जो है बंद नहीं होता है मरने के बाद। उसमें से एक ये भी है
कि ऐसी औलाद को छोड़ करके गया है जो औलाद नेक है, साले है, और ये औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआएं कर रही है, और ये औलाद जो भी अमल करती है चूंकि उसके सबब बने हैं, उसकी तरबियत में जो है अच्छी तरबियत करके सबब बने हैं वालिदैन, तो औलाद की नेकियों का सवाब तो उनको सबब होने के लिहाज से मिलता ही मिलता है। आपको उनके लिए कुर्बानी करने की जरूरत क्या है? खामखा अपना अकाउंट न बढ़ा करके उनका अकाउंट तो वैसे भी बढ़ेगा, आपका अकाउंट भी चलता रहेगा, उनका अकाउंट भी चलता रहेगा। अपने नाम से करो, तो अपने नाम से कुर्बानी करेंगे तो अकाउंट चलता रहेगा, उनको भी मिलेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर जो है वालिदैन ने सही तरबियत की है औलाद की, तो औलाद की तरफ से नेक अमल जो भी होता है अल्लाह ताला उसका अजर सवाब वालिदैन को भी देगा, उसको तो देगा ही, औलाद को नहीं देगा ऐसी बात नहीं है। जैसे ये है कि ये हदीस में आता है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु अजरु फलहु अजरुन का अजर फाइल, कि जो कोई भी नेकी का किसी को पता बताता है, नेकी की तरफ दावत देता है, नेकी की तरफ से उसको नेकी की तरफ गाइड करता है, और उसकी दावत पर वो आदमी नेकी की तरफ आ जाता है, नेकियों के रास्ते पर लग जाता है, तो जो नेकी करने वाले का अजर व सवाब होता है वही अजर व सवाब उस दावत देने वाले को भी मिलता है। यानी नेकी करने वाले का जो नेकी का सवाब है वो अपनी जगह पर रहेगा, यानी इसके अकाउंट में कोई कमी नहीं होगी, ये अपनी जगह पर रहेगा ही। ये अपना सवाब नहीं दे रहा, इसको अपना पूरा सवाब मिल रहा है, लेकिन जो उसने अमल किया तरबियत करने का, गाइड करने का, उसका अजर सवाब उसको मिलता रहेगा। तो ये सिलसिला है अल्लाह ताला ने रखा है, इससे ना फायदा उठाओ, अपने नाम से कुर्बानी करो, वालिदैन को खुद ब खुद सवाब मिलेगा, उनकी तरफ से अलग से कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे भाइयों चंद बातें थी जो आज के दर्स में हमने आपके सामने पेश की। अब इसके बाद कुर्बानी का मसला हो जाने के बाद जो चीज रह जाती है वो क्या रह जाती है? अकीके का मसला, अकीका करना, अकीके के मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने पेश करेंगे। इस तरह से ये इबादत के जो मसाइल थे वो खत्म होंगे। अब इसके बाद हमारा मुआमलात के मसाइल का सिलसिला शुरू होगा। तो निकाह से हम शुरुआत करने का इरादा है, तो निकाह, तलाक, खौला, इला और भी ज़िहार इससे जुड़े हुए कुछ मसाइल हैं, तो वो सब के सब जो है उसी सिलसिले में रहेंगे। फिर उसके बाद मुआमलात में ही खरीदने और बेचने के ताल्लुक से जो शरीयत के अहकाम हैं, जो अहादीस हैं, उसकी रोशनी में जो शरीयत के मसाइल हैं, वो इस तरह से मुआमलात का सिलसिला अब शुरू होगा। इबादत का सिलसिला तकरीबन खत्म हो चुका है, अब आखिरी पड़ाव अकीका का मसला वही बाकी है, जो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने पेश किया जाएगा। आज का दर्स हम इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।